1984 के 41 साल बाद वो मौका आने वाला है जब एक भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। वह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 14 दिन बिताकर कई सारे प्रयोग भी करेगा। वह व्यक्ति है भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। वह राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं जो स्पेस में जाएंगे। इसके अलावा पहले भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर में रहेंगे। शुभांशु भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट व टेस्ट पायलट है। उन्हें 10 जून को आईएसएस के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन मौसम की खराबी के कारण उनकी उड़ान टाल दी गई। अब वह 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज भारतीय समय के अनुसार जो है वो शाम 5:30 बजे कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगे। शुभांशु शुक्ला जिस अंतरिक्ष मिशन पर जा रहे हैं उसे नाम दिया गया है एक्सियोम 4। इसे मिशन आकाश गंगा भी कहा जा रहा है। कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन C2-13 यान से अंतरिक्ष यात्री IAS जाएंगे। भारत सरकार ने इस मिशन के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। AX4 मिशन स्पेस एक्स का 53वां ड्रैगन मिशन है। इसमें शुभांशु शुक्ला के अलावा 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी हैं। इस मिशन में अमेरिका के कमांडर पैगी वीटन, पोलैंड के स्लावोश और हंगरी के टिबोर कापूस शामिल है। You asked that because Gaganyaan is a very ambitious mission as far as ISRO is concerned. The whole world is closely watching it, and in fact all the 4 astronauts were also being trained for Gaganyaan only. Because Gaganyaan will also involve certain technologies like docking, undocking, which will happen even in this. So once they move up, it will take about 28 hours. Then after 28 hours, it will reach about 400 kilometers from the surface of Earth, which is in American phraseology about 250 miles. And there the docking would happen. They would then enter into the space station and remain there for a minimum of about say 2 weeks or 14 days, could be extendable also. So the experience and getting accustomed to that kind of exercise, walking into, walking out, would be also required in case of Gaganyaan, and also several future experiments, and more so India's own space station. We plan to have our own exclusive space station by 2035, which will be known as Bharat Space Station. And for that also, this experience is going to come handy. I think the very fact that at this moment when we are talking to each other, we are sitting at a place far, far away from India. This is the Nice location in France, and over here also you find all the delegates who have arrived here for the conference discussing about India's participation in the International Space Station mission, which is going to happen or which is going to be launched tomorrow. So that itself signifies the extent of importance and also the kind of interest it has generated across the world. And I think that's also been because, though of course you mentioned that the Indian astronaut, the last one to go up in the space was Rakesh Sharma, which happened about four decades back, to be precise, in 1984. But the main difference is that, one of course that was a Soviet mission, and Rakesh did not have much to perform because India's space program was still in a very early in the infancy stage, and therefore it was more of symbolic of the bonding that or the friendship that India and Soviet Union shared at that point in time. But unlike that mission, this time Shubhanshu Shukla is going to play a very important role. Of the 4 crew members, besides of course the commander who happens to be US citizen, I think Shubhanshu is going to have the most critical role, because he is going to perform experiments which are exclusively going to have a bearing on the future space missions, not only those of India, also of NASA and other agencies. And I'm also glad to mention that keeping up the spirit of whole of science and whole of government, which Prime Minister Modi keeps emphasizing time and again, we got ISRO involved in an official MOU with the Department of Biotechnology, and as of now, Shubhanshu is
scheduled to perform 6 sets of experiments. शुभांशु शुक्ला यूपी के लखनऊ में जन्मे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की अलीगंज शाखा से वो पढ़े हैं। 2003 में एनडीए के जरिए भारतीय वायु सेना में शामिल हुए। एनडीए में शामिल होने की उनकी कहानी भी काफी रोचक है। इस परीक्षा को देने के लिए अपनी बड़ी बहन की शादी के बाद होने वाली विदाई से बिना बताए चले गए थे। उन्हें 2006 में कमीशन भी मिला, यानी कि भारतीय वायु सेना के सभी लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। उन्हें 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। वह फाइटर, कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट है। उन्हें SU-30, MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डोनियर, AN-32 सहित कई अन्य विमान उड़ाने का अनुभव है। शुभांशु शुक्ला को 2019 में गगनयान मिशन के लिए चुना गया था। इस मिशन की ट्रेनिंग के लिए हुए समझौते के तहत उन्हें 2021 में मॉस्को में गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया, जहां उन्हें जीरो ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन इमरजेंसी प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद इसरो के बेंगलुरु स्थित ट्रेनिंग सेंटर में भी उनका प्रशिक्षण चलता रहा। 2024 में उन्हें एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया। इस मिशन को पहले 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन इसे टाल दिया गया था। इसके बाद 8 जून को मिशन की शुरुआत होनी थी, लेकिन खराब मौसम और अंतरिक्ष यान की तैयारियों के कारण लॉन्चिंग की तिथि 10 जून की गई थी। लेकिन एक बार फिर खराब मौसम के कारण इस उड़ान को टालकर आज यानी 11 जून कर दिया गया है। बता दें कि एलन मस्क और ट्रंप के विवाद के कारण एक्सियोम 4 मिशन पर संकट के बादल थे, लेकिन मस्क ने इस महत्वपूर्ण मिशन को विवाद में नहीं घसीटा। मस्क की कंपनी के रॉकेट से ही अंतरिक्ष यात्रा होगी। इससे पहले मस्क की कंपनी के अंतरिक्ष यान से ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथी धरती पर वापस आए थे। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत शुभांशु शुक्ला को लेकर के बेहद ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है और सभी के अंदर ये जानने की इच्छा है कि आखिर कौन है शुभांशु शुक्ला। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा सर्च करने वाले युवा बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।